हाँ जी, टॉपिक अपना प्रॉफिट एंड लॉस। सो टॉपिक शुरू करने ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸੋ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਐਸ ਪੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੀ। ਐਸ ਪੀ ਮੀਨ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਸੀ ਪੀ ਮੀਨ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਓਕੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੀ ਪੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਐਸ ਪੀ ਮਾਈਨਸ ਸੀ ਪੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸੀ ਪੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੀ ਪੀ ਆਪਾਂ ਸੀ ਪੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਐਸ ਪੀ ਲੈਸ ਹੋਵੇ, ਦੈਨ ਲਾਸ। ਸੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਫ ਲਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੀ ਪੀ ਮਾਈਨਸ ਐਸ ਪੀ। ਠੀਕ, ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਪੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਾਈ ਸੀ ਪੀ ਇੰਟੂ 100। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਪੀ ਅਤੇ ਐਸ ਪੀ ਦੋਨੇ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਸੋ ਲਾਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਲਾਸ ਬਾਈ ਸੀ ਪੀ ਇੰਟੂ 100। ਓਕੇ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਰਨੇ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਪੀ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਔਰ ਲਾਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੋਣਾ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਐਸ ਪੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 100 ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਾਏ 100 ਇੰਟੂ ਸੀ ਪੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਐਸ ਪੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 100 ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬਾਏ 100 ਇੰਟੂ ਸੀ ਪੀ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ 100 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ 100 ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੂੰ 100 ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਸ ਪੀ ਅਤੇ ਐਸ ਪੀ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਔਰ ਲਾਸ ਦੋਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੋਣ। ਸੋ ਸੀ ਪੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 100 ਬਾਏ 100 ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਇੰਟੂ ਐਸ ਪੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਜੇਕਰ ਲਾਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 100 ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ? ਲਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 100 ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਵਾਲਾ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੀ ਪੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਸੀ ਪੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨ ਜੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਧਰ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। 100 ਡਿਵਾਈਡ 'ਚ ਹੈ, ਹੁਣ ਐਸ ਪੀ ਨਾਲ 100 ਕੀ ਹੈ? ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਸ ਪੀ ਨਾਲ 100 ਕੀ ਹੈ? ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ 100 ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੀ ਪੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਸੋ ਲਾਸ ਵੀ ਕੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 8 ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਟॉपिक ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਸ ਟॉपिक ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ 2011 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ, 13 ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ 2 ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਕੀ 1 ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ। 2014 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ, 2015 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਜੁਲਾਈ 2011 ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ, ਇਫ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਜ਼ ਡਬਲ, ਕਿ ਮੀਨ ਜੇਕਰ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਿਪਲ। ਜੇਕਰ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੀ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਲੈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਕਸ ਅਤੇ ਸੀ ਪੀ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕਰਾਂਗੇ 100 ਰੁਪੀਜ਼। ਓਕੇ, ਸੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਐਸ ਪੀ ਮਾਈਨਸ ਸੀ ਪੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ 100। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਫਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਠੀਕ, ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕਿ ਐਸ ਪੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸ ਪੀ ਆਪਣਾ ਡਬਲ, ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਐਸ ਪੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? 2x ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੈਨ ਸੀ ਪੀ ਆਪਣਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 100 ਦੇ ਦੇਗਾ। ਠੀਕ, ਸੋ ਇਟ ਮੀਨ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਪਣਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਐਸ ਪੀ ਮਾਈਨਸ ਸੀ ਪੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 2x ਮਾਈਨਸ 100 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਸੋ ਬਟ ਦੇਖੋ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਡਬਲ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਜੋ ਡਬਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇਹ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਬਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੈ। ਠੀਕ, ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਪੀ ਡੈਸ਼ ਮੰਨ ਲਓ।
कि देखो जो अपना ये वाला प्रॉफिट लैट करो 5 रुपये है लैट कर लो सो इनू प्रॉफिट में कितना होना चाहिए ट्रिपल मीन 15 होना चाहिए ओके सो आप कंडीशन लानी है इक्वलिटी की सो मी पी नू आप इज इक्वल टू पी डैश करना है मीन 5 नू आप इक्वल टू 15 करना ना सो 5 नू 15 ਦੇ इक्वल करने ਲਈ ਆਪਾਂ 3 ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 5 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ p ਨੂੰ p ਡੈਸ਼ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਟ ਮੀਨ 3p ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ p ਡੈਸ਼ ਹੋਏਗਾ ठीक सो 3 इंटू एक्स माइनस 100 इज इक्वल टू 2x माइनस 100 सो 3x माइनस 300 2x माइनस 100 सो इनू इधर ले उधर ले जाओ 3x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 100 प्लस 300 सो 1x इज इक्वल टू 200 सो x की वैल्यू कितनी है 200 सो x अपन लैट कितना सैलिंग प्राइस नू इट मीन सैलिंग प्राइस कितना हो गया 200 CP अपन लैट कितना 100 सो प्रॉफिट कितना हो गया 100 तो CP 100 क्यों 100 लैट किया क्योंकि परसेंटेज में जो प्रॉफिट तो लॉस है ना वो CP के अकॉर्डिंग चलता है जो प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं उदो टोटल अपना CP होंगे ओके सो दोनों की है CP के उपर डिपेंड करते हैं तो ही आप की है तो परसेंटेज हमेशा की है आउट ऑफ 100 होंगी है सो पहले ही 100 लैके चले हैं ठीक है तो जो प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला यूज करेंगे ना उदो आपको कोई दिक्कत ना आए दिक्कत मतलब कोई मल्टीप्लाई विद 100 कर देना तो ये 100 के CP नाल कैंसल हो जाऊगा ठीक सो प्रॉफिट अपना की है 100 तो देखो जो आप गल ये कर रहे थे कि हम प्रॉफिट परसेंटेज करना फाइंड P बाई CP इंटू 100 सो P की वैल्यू 100 है CP पर 100 लैट किया इंटू 100 100 कैंसल सो आंसर इज 100 तो प्रॉफिट परसेंट की ना 100 ऑप्शन नंबर 2 अपना ये आंसर हाँ जी सम नंबर सैकेंड देखो कि जो 2013 के पेपर में आया सी द कॉस्ट ऑफ हाउस इनक्रीज 20% विद इन 1 ईयर मीन किसी हाउस की कॉस्ट की है 1 ईयर 20% की इनक्रीज हो जाती है सो आप फाइंड करना कि वो जो कॉस्ट है किन्ने टाइम की डबल होगी किन्ने टाइम सो देखो सवाल में कि आप कॉस्ट फाइंड करनी है सो लैट करते पता कॉस्ट कितनी है 100 सो इनक्रीज कितनी हो रही है 20% हो रही है सो कितनी इनक्रीज हो जाएगी एक साल के फर्स्ट ईयर सो देखो 100 इंटू सो 20 रुपीज़ की है इनक्रीज होगी सो टोटल कितनी इनक्रीज होगी 100 में 20 करो प्लस 120 रुपीज़ सो एक साल में कॉस्ट 100 तो वध की कितनी होगी 120 सो उस तो बाद सैकेंड ईयर में देखो कितनी होगी इंक्रीज कि 120 का 20% हो जाएगी 24 रुपीज़ सैकेंड ईयर में 20% नाल 24 रुपीज़ की है इनक्रीज हो जाएगी सो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी देखो 120 के आप 24 ऐड करा कि 144 हो जाएगा ठीक सैकेंड ईयर में कॉस्ट कितनी है 144 सो गल करते थर्ड ईयर में सो थर्ड ईयर में फिर 144 का 20% की इनक्रीज हो जाएगी सो उन्हें कैंसल नहीं होंगे 288/10 मीन 28.8 रुपीज़ की इनक्रीज होएगी तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 144 में 28.8 सो 170.2 रुपीज़ थर्ड ईयर में कॉस्ट नहीं 170.28 सो देखो फोर्थ ईयर 170.8 सो ये फिर डेसिमल इनक्रीज करें 20% सो 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 कैंसिल हो जाएगी सो आप इन दोनों की करेंगे मल्टीप्लाई अपना आंसर आ गया 334.56 ओके सो फोर्थ ईयर में आके 34.56 रुपीज़ की यदि कॉस्ट इंक्रीज होगी तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 172.8 प्लस 34.56 सो इन दोनों का प्लस करांगे आप 207.36 सो देखो कॉस्ट आप लैट की 100 सो फाइंड करनी है किन्ने टाइम में कॉस्ट की है डबल हो जाएगी सो इतने आगे कॉस्ट की डबल हो जाती है कितने आगे फोर्थ ईयर में आगे सो इट मीन ऑप्शन नंबर 4 की अपना इस क्वेश्चन का आंसर सम नंबर 3 देखो जो दिसंबर 2013 के पेपर में आया सी सो देखो तो मीनिंग की है कि एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट
लॉस ऑफ 29%, मतलब कोई आर्टिकल है उन्होंने आप सेल करते हैं 29% लॉस उपर। हैड इट बीन सोल्ड फॉर 84 रुपीज़ फॉर मोर, कि मीन जेकर आप SP 84 रुपीज़ के ज़्यादा कर दिए दैन अपना प्रॉफिट कितना होंदा है, प्रॉफिट होंदा 11%। ठीक है, इट मीन जो पहले आप सेल किया 29% की है लॉस होया, फिर आप SP की है जो SP है वो 84 की इनक्रीज करता दैन अपना प्रॉफिट होंदा है, प्रॉफिट परसेंटेज होंदा 11%। सो आप कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। सो देखो आप लैट करते हैं कॉस्ट प्राइस, वो एक्स हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज की है 29 लॉस परसेंटेज की 29%। सो लॉस कितना हो जाएगा, सो 29/100 इंटू CP। सो लॉस होया 29/100 इंटू एक्स। ओके, सो SP फाइंड करना फॉर्मूला की होगा अपना CP माइनस लॉस। सो ये फॉर्मूला आया कितों वो बारे गल कर लेने आप, SP माइनस CP माइनस SP इज इक्वल टू लॉस। सो ये SP की वैल्यू कटांगे, सिंपली फॉर्मूला बन जाएगा। सो SP की वैल्यू की होगी x माइनस 29/100 इंटू एक्स। सो इज इक्वल टू 71/100 नाल एक्स लगेगा। सो SP कितना पे 71/100 इंटू एक्स। ठीक, सो CP x है, लॉस 29/100 इंटू एक्स, SP कितना 71/100 इंटू एक्स। सो देखो फिर अपन क्या होना है कि जो SP है इनक्रीज होता है 84 रुपीज़, SP प्लस 84 ये कंडीशन अपन गिवन है, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ प्रॉफिट कितना होता है, प्रॉफिट परसेंटेज 11% ही होता है। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ CP फाइंड करांगे। तो देखो CP कितना 71/100 इंटू एक्स प्लस 84। ठीक है, क्योंकि CP की है 84 प्लस हो रहा है। सो इन्हों करो ऐड 71/100 इंटू एक्स प्लस 8400। ओके, बाय LCM। सो न्यू SP कितना का ए वाला। सो देखो हम आप CP करना फाइंड। सो CP का फॉर्मूला की है SP इंटू 100 बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। सो CP की वैल्यू कितनी है x है, SP कितना 71 इंटू एक्स प्लस 8400 बाई एक्स। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज 11। ठीक, सो 100 एक कैंसल, सो बचेगा x इज इक्वल टू 71x प्लस 8400 बाई 111। सो करें क्रॉस मल्टीप्लाई पर देखो 111 इंटू एक्स इज इक्वल टू 71x प्लस 8400। सो इधर मूव कर दो 40x आ जाएगा इज इक्वल टू 8400। सो 84 डिवाइड बाई 440। सो 0 0 कैंसल, सो 210। सो एक्स आप लैट किया CP ਨੂੰ, CP की वैल्यू कितनी है 210 रुपीज़। सो ऑप्शन नंबर अपना की है फर्स्ट अपना की है आंसर। ओके, हाँ जी, सम नंबर 4 देखो जो कि पेपर 2024 आया सी कि शॉपकीपर बाय 2 एप्पल फॉर 1 रुपीज़। कोई शॉपकीपर है उन्हें 2 एप्पल खरीदे है 1 रुपये के, एंड ही लेटर सैलिंग 5 एप्पल फॉर 3 रुपीज़, कि उन्हें 5 एप्पल की है 3 रुपये बेचे है। फाइंड करना प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। सो देखो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड कर ली, मीन जो कॉस्ट है जो सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस से सैलिंग प्राइस ये हमेशा इक्को चीज़ होनी चाहिए, मतलब जेकर जिन्नियां चीज़ां आप खरीदियां उन्नियां बेचनियां चाहिए अपन। ठीक है, तो देखो खरीदे किने 2 एप्पल, बेचे किने 5 एप्पल। सो पर इन्होंने दोनों की कॉस्ट प्राइस से सैलिंग प्राइस एप्पलों की क्वांटिटी है, एप्पलों की गिनती है वो सेम करांगे। किमें देखो कि CP ऑफ देखो CP ऑफ 2 एप्पल सो कि 1 रुपीज़ है। सो CP ऑफ 1 एप्पल करांगे आप, सो 1/2 कितना 0.5 रुपीज़ हो जाएगी। ठीक, सो देखो SP ऑफ 5 एप्पल 3 रुपीज़। सो SP ऑफ 1 एप्पल कितना 3/5 होगा 0.6 रुपीज़। सो देखो जिन्ने एप्पल खरीदे है उन्ने एप्पल आप सेल करते। सो हम आप इतों प्रॉफिट एंड लॉस चेक करना ईजी हो जाएगा। सो देखो प्रॉफिट की होगा
प्रॉफिट SP माइनस CP, सो 0.6 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0.1, ठीक। सो प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट बाय CP इंटू 100, सो 0.1 बाय, सो CP अपना कितना सकता 0.5 इंटू 100, ठीक। सो हम डेसीमल, ये डेसीमल कैंसिल हो जाएगा, इट में 1/5 इंटू 100 बचेगा। सो सॉल्व करिए 20% अपना ये प्रॉफिट। सो इट मीन ऑप्शन नंबर 2 अपना ये आंसर। काम नंबर 5 देखो, जो पेपर 2015 में आया थी कि एक शॉपकीपर अर्न अ प्रॉफिट फ्रॉम 8 रुपीज़ पर बैग फ्रॉम अ बैग ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड। कि वो शॉपकीपर है, जेकर वो वाइट सीमेंट सेल करता है तो उन्होंने एक बैग पिछे की है 8 रुपीज़ की प्रॉफिट हो रहा है एक बैग पिछे, एंड लॉस ऑफ 5 रुपीज़ पर बैग फ्रॉम ग्रे सीमेंट सोल्ड। जो ग्रे सीमेंट बैग का ग्रे सीमेंट सेल करता है तो पर बैग पिछे की है एक बैग पिछे 5 रुपये लॉस हो रहा है। सो कोई कंपनी है, वो कंपनी उस दुकानदार को समान खरीदी है 3000 बैग की है वाइट सीमेंट दे तो 5000 बैग की है ग्रे सीमेंट दी। सो दसना अपना प्रॉफिट या लॉस कितना होएगा। सो देखो एक तो है वाइट सीमेंट वो, एक की है ग्रे। सो वाइट सीमेंट के विच जो बैग है पर बैग में 8 रुपीज़ की है प्रॉफिट है, ग्रे विच किनू 5 रुपीज़ की है लॉस है। सो देखो उन्हें जो वाइट सीमेंट है वो किन्ने बैग खरीदे बेचे है 3000, ठीक है। वाइट बैग किन्ने 3000 उन्हें बेचे है। सो एक बैग पिछले किन्नी उन्होंने प्रॉफिट हो रहा है मल्टीप्लाई 8 करांगे। सो ग्रे बैग किन्ने 5000 है। सो ग्रे बैग है एक बैग पिछले 5 रुपीज़ की लॉस हो रहा है। सो देखो 24,000 की है प्रॉफिट है, 25,000 की है लॉस है। ओके सो देखो ये लॉस है, ये वाला की है प्रॉफिट है। सो क्लियर पता लग रहा है कि उन्होंने लॉस हो रहा है, ठीक है, की हो रहा है लॉस। सो लॉस जी कितना लॉस हो रहा है 25,000 विचों आप 24,000 की है माइनस कर देंगे, आंसर 1,000 आएगा। सो ऑप्शन नंबर 3 अपना की है आंसर। हाँ जी सम नंबर देखो 6 जो पेपर 2015 में आया कि ए पर्सन सोल्ड 2 स्टील अलमीरास फॉर 1980 रुपीज़ ईच। कि मीन कोई परसन ने 2 स्टील दी अलमीरा सेल की जी एक अलमीरा किन्नी दी 1980 रुपीज़ की, ठीक है। ऑन वन ही गेन 10%, एक अलमीरा के उपर उनके 10% प्रॉफिट होया तो एक के उपर की लॉस होया 10%। सो फाइंड करना आप सी कि प्रॉफिट कितना होया या लॉस कितना होया, ठीक है। सो देखो अपन गिवन है SP गिवन है तो प्रॉफिट गिवन है तो लॉस गिवन है। सो देखो फर्स्ट SP ऑफ फर्स्ट अलमीरा कितनी 1980। सो सैकेंड अलमीरा कितना है दोनों सेम ही है SP। सो फर्स्ट प्रॉफिट परसेंटेज है 10%, सैकेंड में लॉस कितना 10%। सो हम आप फॉर्मूले हैल्प नाल CP फाइंड करांगे। सो CP फॉर्मूला की है SP इंटू 100 बाय 100 प्लस प्रॉफिट। तो सेम CP इज इक्वल टू SP इंटू 100 बाय 100 माइनस लॉस, ठीक। सो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करांगे आप देखो 1980 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट 100। सो हम सॉल्व करते हैं, देखो 0 0 कैंसिल, ये दोनों कैंसिल 180। सो CP कितना है फर्स्ट का 1800 1800। सो सैकेंड में CP कितना आएगा देखो 1980 इंटू 100 माइनस लॉस, सो 90 आएगा। सो ये दोनों कैंसिल, सो 220 मीन 2200। सैकेंड अलमीरा CP कितना आएगा 2200, फर्स्ट अलमीरा CP कितना है 1800। सो देखो सो टोटल आप फाइंड करना है SP, टोटल SP 1980 प्लस 1980 इन्होंने दोनों SP का प्लस कर देंगे। सो अपन की टोटल SP मिल जाएगा 0693, ठीक है। सो टोटल
CP 22 ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂ 0004 ਸੋ CP ਕਿੰਨਾ 4000 SP ਕਿੰਨਾ 3960 ਓਕੇ ਸੋ ਇਟ ਮੀਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਲਾਸ ਸੋ ਲਾਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ CP ਵਿੱਚੋਂ SP ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਈਨਸ ਓਕੇ ਸੋ ਲਾਸ ਹੈਗਾ 40 ਰੁਪਈਸ ਸੋ ਲਾਸ ਕਿੰਨਾ 40 ਰੁਪਈਸ ਬਟ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਸੋ percent loss percentage ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ loss by CP into 100 ਸੋ 40 by CP ਕਿੰਨਾ 4000 into 100 ਸੋ 0 ਕੈਂਸਲ ਸੋ loss ਇਹਨੂੰ 1% ਕਿੰਨਾ loss ਹੈ 1% ਸੋ loss to ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ loss में से lost ठीक है सो लॉस कितना 1% ऑप्शन नंबर 3 ओके सो इस ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 8 प्रॉफिट एंड लॉस ਕੀ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ और ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ।